और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बहुत अच्छी खबर से। विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। 203 रनों से जनूबी अफ्रीका को टीम इंडिया ने शिकस्त दी है। मोहम्मद शमी और जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से यह मैच टीम इंडिया ने जीता है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हासिल किए जबकि जडेजा के नाम 4 विकेट रहे। तो विशाखापट्टनम टेस्ट टीम इंडिया ने 203 रनों से जीत लिया है। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 बेहतरीन विकेट हासिल किए। इस तरह जनूबी अफ्रीका दूसरी इनिंग्स में 191 रनों पर ही ऑल आउट हो गया। टीम इंडिया ने पहली इनिंग में 502 रन 7 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया था और इसके अलावा टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग्स में 323 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 431 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में 191 रन बना पाई और जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम इस तरह से ऑल आउट हो गई और इंडिया ने विशाखापट्टनम टेस्ट मैच 203 रनों से अपने नाम कर लिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद एनसी का जम्मू से एक वफ्द पहली बार श्रीनगर पहुंचा। वफ्द ने साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से हरिनिवास गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इसके बाद यह वफ्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पहुंचा और फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। इस वफ्द की क़यादत जम्मू में एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस वफ्द को श्रीनगर आने और दोनों लीडरान से मुलाकात की इजाजत दी थी। Restrictions were removed on the leaders of political mainstream parties of Jammu. We organized a meeting in Jammu where it was decided that we write to the Honorable Governor Shri Satyapal Malik ji to seek his permission to allow us to have an audience with the President of the party, Dr. Farooq Abdullah, and Mr. Umar Abdullah. On the permission being granted, a 15-member delegation, all of ex-legislators of the Jammu and Kashmir National Conference belonging to the Jammu division came today morning to Srinagar, and we met Mr. Umar Abdullah first and then Dr. Farooq Abdullah now. We are happy that they are both well and in high spirits. Of course, they are pained and anguished about the developments, particularly the lockdown of the people, and we as a party appeal that for the political process to start and the democracy to revive in Jammu and Kashmir. So far as the National Conference is concerned, it has a legacy, it has a history, a checkered track record, and the National Conference will continue to strive for the welfare of the people of Jammu and Kashmir and shall continue to work for communal harmony, brotherhood, togetherness, and keep the secular fabric of Jammu and Kashmir shining as ever. There's a complete lockdown. The political mainstream parties, all members are out. If the political process has to start, then these people have to be released. Now look at the case of National Conference. If 380 people have to, even if we want to contest the BDC elections, the 380 panchayats that exist, if we have to get the people to sign the mandate has to be signed by the president of the party, Dr. Farooq Abdullah, who has been unfortunately detained under PSA. I mean, I think that putting PSA on Dr. Farooq Abdullah is by itself. If the leaders and members will be released, will you participate in the elections? Let them be released, and then the working committee of the party will meet. We will all meet together and discuss and formulate a strategy for the future. खबर यूपी से है, जहां आजमगढ़ के साबिक रुकन पार्लियामेंट रमाकांत यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में उन्होंने वापसी की। इसके साथ ही फूलन देवी की बहन रुकमनी निषाद और बीएसपी के साबिक एमएलसी अतहर खान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।
रमाकांत यादव 2019 में बीजेपी की जानिब से टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे। रमाकांत यादव 4 मरतबा रुकने असेंबली और 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले मैं समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और नमन करता हूं। मित्रों, आज अपने घर में, अपने परिवार में आने के बाद अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है, आज मैं देख रहा हूं जो देश के हालात हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, मजदूर एक आशा भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा हूं। और ये जो ताकत बढ़ रही है वो हमें कहीं न कहीं भरोसा दिला रही है कि 2022 में आप सबका सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। आने वाले समय में एक साथ रह करके हम लोग काम करेंगे। 1 करोड़ लोग इस सरकार ने बेरोजगार कर दिए। जब कभी समाजवादी सरकार में कुछ पाबंदियां लगती थीं तो सरकार क्या कहती थी, वो ऑडियो बहुत साफ नहीं था। अगर ऑडियो साफ अगर आप सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे सरकार क्या कहती थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सिद्धांत दिया सत्य का और अहिंसा का, उन सिद्धांतों पे न जाने कितने दुनिया के देश के लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में नेता प्रभावित हुए, उस रास्ते पर चले। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, और फिर जो अपने वादे भूल गए उसके बारे में तो उन्होंने कहा नहीं। बनाना तो स्मार्ट सिटी था, लेकिन कौन से शहर बस गए हैं, कैसे बन गए हैं, वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जानता। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस जल्द ही अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर सकती है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि रियासत में उनकी हुकूमत बनेगी और वो भी पूरी अक्सरियत के साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, चुनाव में समय कम रह गया है, जन प्रचार के लिए अब क्या कुछ करने वाले हैं, आगे क्या कुछ रहेगा? पूरे जोर शोर से प्रचार करेंगे। अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, मैनिफेस्टो देंगे, लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, हम क्या क्या कराएंगे, अपने घोषणा पत्र में सारा कहेंगे। और हम हल्का वाइज जा रहे हैं, जैसे मैं भी पहले भी 4 हल्कों में गया हूँ, कल भी जाएंगे और फिर जाते रहेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार प्रत्याशी सोच समझ के निकाले हैं, कांग्रेस ने भी निकाले हैं। अब 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जनता जनार्दन फैसला करेंगी। उम्मीदवार कितने पक्के हैं और जमीन से जुड़े कितने हैं, क्या लोगों का प्रचार प्रसार होगा, लोगों का रिस्पांस कैसा देखने को मिल रहा है? आगामी विधानसभा चुनाव में आउट ऑफ 90 आप कितना अचीव करना चाहते हैं? देखिए, सब अच्छे हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं और सब जमीन से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं। जितने भी तय किए हैं पार्टी ने, अच्छा मजबूती से लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस का बहुमत आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, विपक्ष सवाल पे सवाल खड़े कर रहा है, संगठन को लेकर बता रहा है कि कमजोर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा ने सब कुछ देखा, मुख्यमंत्री रहे, जनता की सेवा करी। इस बार अगर मौका मिलेगा तो क्या फिर से तैयार है? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो पार्टी सेवा का मौका देगी, सेवा करेंगे। हम तो जनता की सेवा के लिए राजनीति में है, कोई स्वार्थ के लिए थोड़ा ही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आगामी 24 तारीख को हरियाणा की जनता जनार्दन ये फैसला करेगी कि हरियाणा के इस चुनावी दंगल का सिकंदर कौन होता है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज 18, नई दिल्ली। हमारा मुल्क दशहरे का त्योहार बदी पर नेकी के तौर पर मनाया जाता है।
कानपुर में दशहरा कौमी यकजहती की मिसाल पेश करता है। कानपुर रामलीला सोसाइटी की जानिब से परेड ग्राउंड पर रामलीला और आतिशबाजी के प्रोग्राम होते हैं और रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इन पुतलों को तैयार करने और आतिशबाजी करने के लिए मुस्लिम कारीगर दूसरे शहरों से आते हैं। इन लोगों का मानना है कि मुल्क में अमन सुकून और भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। दिल में कोई भेदभाव नहीं रहता है। ये हमारी रोजी रोटी है, पुश्तैनी काम है। एक दूसरे से भाईचारा बन रहता है, हमारा सम्मान भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। और 80 फुट ऊंचा है और खूबसूरत है। रिमोट से उड़ाया जाएगा और आंखों में जो निकलेगी, रोशनी निकलेगी, मुंह से फूल जलेंगे। इसमें क्या कहना, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। सरकार तो कुछ भी कह सकती है, दोनों एक दूसरे से बिना काम चल ही नहीं सकता है। हिंदू दिवाली में मियाँ भाई करते हैं, उनके उसमें हमारे भी उनका सपोर्ट मिलता है। दोनों मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। ऐसे तो कोई भी अफवाह उड़ा देता, भाई हिंदू से इससे नहीं कराए, वो मियाँ भाई से नहीं कराए, ये तो अफवाह उड़ती है। एक दूसरे बगैर काम ही नहीं चल सकते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और जल्दी ही इस मामले में फैसला आने की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत इस तनाज़ा को दुर्गा पूजा पंडाल में भी झांकी के तौर पर पेश किया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल को सुप्रीम कोर्ट की शक्ल दी गई है और कमरा अदालत में मुस्लिम फरीक को राक्षस के तौर पर दिखाया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद शहर को गंगा जमनी तहजीब के अलामत के तौर पर जाना जाता है। खासतौर से यहाँ के त्योहारों को सभी फिरके के अफराद मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा के दौरान माहौल कुछ बदला सा नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का तनाजा सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के जरिए इस मुतनाजा मामले की झांकी पेश की गई है। पंडाल में सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत दिखाया गया है। इसमें बाबरी मस्जिद के फरीक को बदी की अलामत यानी राक्षस के तौर पर पेश किया गया है। इस बार जो हमारी दुर्गा पूजा की थीम है वो हम लोग चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी राम मंदिर का मुद्दा विचाराधीन चल रहा है, उससे बड़ी अदालत हमने माँ की बनाई है ताकि हमारे राम मंदिर का मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले उसका। और देवी इसमें हम विशेष पूजा भी करवा रहे हैं, विशेष अर्जी लगा रहे हैं माँ से कि हमारे राम मंदिर का मुद्दा जितनी जल्द से जल्द हो सके उसका निर्माण करवाया जाए और हिंदुओं को आस्था का सम्मान किया जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस मखसूस पंडाल का इफ्तिताह इलाहाबाद के एसपी सिटी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया है। बाबरी मस्जिद का मामला चूंकि अभी अदालत में जेर समाअत है, लिहाजा इस मुतनाजा मामले को झांकी के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। दुर्गा पूजा पंडाल के मुंतजमीन का कहना है कि वो इस झांकी के जरिए पीएम मोदी को एक पैगाम देना चाहते हैं। हमारा प्रयास एक शांति के रूप में, शांति स्वरूप एक रूप, शांति स्तूप का जो एक शांति का प्रतीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भी है कि आप शांति को कायम रखिए और शांति के स्वरूप के रूप में उनको प्रयागराज से हमारी तरफ से एक संदेश। दुर्गा पूजा पंडाल में इस तरह की झांकी पेश करने वालों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आएगा। ऐसे में दुर्गा पूजा के मौके पर इस तरह के पंडाल सजाकर वो अपने मजहबी जज्बात का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बिहार का रुख करेंगे, जहां पटना में सैलाब का पानी तो कम हो रहा है लेकिन बयानों का सैलाब आ गया है। इत्तेहादी पार्टियां यानी जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब के पानी में बह जाएगी दोस्ती, क्या बयानों से टूट जाएगा एनडीए? इस अध्यक्ष से पूछिए, जिस दिन पार्टी मुझे कह देगी मैं क्षण नहीं लगाऊंगा इस्तीफा करने में। बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार, मैं सच बोलता रहूंगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बात। जेडीयू लीडरों ने भी खोला मोर्चा। एक शब्द है अंग्रेजी में डिरेल, वो गिरिराज सिंह पर फिट बैठता है। जी, बारिश हुई, पटना पानी पानी हुआ, सैलाब जैसे हालात पैदा हुए और जेडीयू बीजेपी की दोस्ती में दरार पैदा हो गई। दोनों जमातों के लीडर एक दूसरे पर हमले करने लगे। ऐसा लगा जैसे पानी के साथ साथ बयानों का सैलाब आ गया हो। शुरुआत गिरिराज सिंह ने की और फिर बीजेपी की तरफ से नीतीश पर निशाने लगाए जाने लगे। जवाब में जेडीयू लीडरों ने भी बीजेपी के वजीरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जांच हो, कार्रवाई हो, जिम्मेवारी फिक्स हो। एक और आग्रह करेंगे सभी लोगों से
कि अपने अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करें, दायित्व का निर्वहन करें और लॉन्ग प्लान करें। हाईलाइटेड होंगे। एक शब्द है अंग्रेजी में डिरेल, वो गिरिराज सिंह पर फिट बैठता है। पटना के बाढ़ राहत में क्यों नहीं आए? क्या राहत कार्य के लिए उन्होंने काम किया? खाली ट्वीट करने से कोई नेता नहीं हो सकता है। ये लोग नीतीश कुमार के पैर के धूल के बराबर नहीं है और हम लोग ऐसे गिरिराज सिंह को नोटिस नहीं लेते हैं। जरा सी बारिश हुई और इंतजामिया की पोल खुल गई। मालूम हो गया कि तैयारी कैसी थी, सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने तैयार थे। साथ ही पोल खुल गई उस दोस्ती की जो जेडीयू बीजेपी ने सरकार चलाने के लिए बनाई थी। अब अपोजिशन के लीडर तंज कस रहे हैं। सरकार में दोनों शामिल हैं, बीजेपी और जदयू एक दूसरे को कहकर जनता को बरगला रहे हैं। सरकार की न जिम्मेदारी है ये तो सच्चाई है कि आपस में इन लोगों का बिक्रिंग है। इस बात से कैसे नकारा जा सकता है? कभी नीतीश कुमार जी का भी स्टेटमेंट जिस तरह से आता है गिरिराज जी के खिलाफ, या पूरी पार्टी जो बनी है सुशील मोदी जी को छोड़ के, कोई नीतीश जी को नहीं देखना चाहता है। अब जब दो इत्तेहादी पार्टियां लड़ रही हैं, तो अपोजिशन चुटकी ले रहा है। वैसे बीजेपी जेडीयू लीडर चाहे लाख एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें, पटना को पानी पानी करने के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं, ये बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दफा 370 हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर में सियाहत का शुबा काफी मुतासिर हुआ, लेकिन इन हालात में भी एडवेंचर बाइकर्स कश्मीर के रास्ते लेह जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। जहां एक तरफ ये खिता सियाहत के एतबार से काफी जरखेज है, वहीं एडवेंचर टूरिज्म के भी काफी मौके मौजूद। चंद बरसों से लेह में बाइकिंग का रुझान बढ़ गया है। मुल्क की कई रियासतों से लोग बाइक्स पर पहाड़ों और वादियों को सर करते हुए लेह जाते हैं। ये लोग कश्मीर से होते हुए ये सफर तय करते हैं। पूरा से वरीला होते हुए, ये कारू से होते हुए, ये तो बाइक पे चलना तो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही सिंगल राइड करने में बहुत खुश आता है। I asked our friends any issue for Kashmir. Already before 1 month, someone coming this way in Kashmir, they to go Ladakh. Someone coming Manali to come Ladakh. So better everyone telling go to this way, easy to exit. हम लोग अभी जा रहे हैं द्रास। फाइनल डेस्टिनेशन पहले जंस्कार जाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे, फिर उसके आगे देखते हैं कहाँ जाना है। प्रोग्राम ऐसे बना जी, कई साल हो गए साथ कर जाते हुए, तो हर साल निकलते हैं साथ, इस बहाने मिलते रहते हैं दोस्त आपस में। लेह में ये बाइकर पेंगोंग, नोब्रा के अलावा बटालिक दहानू जैसे मकामात को जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि वो कश्मीर में जारी नामसाइद हालात से वाकिफ थे, मगर इसके बावजूद इन्होंने इस सफर पर आने का फैसला किया। वो कहते हैं कि इन्हें सफर के दौरान कश्मीर में भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। हमें पता था सिचुएशन यहाँ पे इतनी ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी हम आए हैं। लोग तो अच्छे हैं यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं, नॉर्मल था, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। Nothing. Yesterday night around 10:30 I reached here. So nothing happened. Only somewhere stopping the military gates. They're asking where are you from? Why you come here? I say like this. I'm traveler. I'm from to Kerala. I'm going to Ladakh. Okay. Happy journey say only. इन बाइकर्स का कहना है कि ये सफर इनके लिए यादगार रहता है। ये बाइकर्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुनफरिद माहौल और आबो हवा के साथ साथ यहाँ की तहजीब तमद्दुन के भी मदह हैं। कश्मीर में पिछले 2 महीने से चल रहे हालातों की वजह से भले ही सियाहती शोबे को दचका लगा हो, लेकिन उसके बावजूद इन हालात में यहाँ पे कई एडवेंचर लवर्स यहाँ के रास्ते ले जा रहे हैं और बाइकिंग का लुत्फ ले रहे हैं। और इनमें से कई ऐसे बाइकर्स हैं जिनका ये कहना है कि वो घर में बताए बगैर इस एडवेंचर राइड पे निकल आए हैं और वो इस राइड को यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
लबनान के वज़ीर दिफा इलियास बूसाब ने शाम के साथ वादी बका की सरहद पर कंट्रोल रखने और स्मगलिंग रोकने के लिए फौजी ताउन बढ़ाने की वकालत की है। बूसाब ने कहा कि हुकूमत शाम के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने के सिलसिले में कोई फैसला नहीं लेती तो मैं शामी हुक्काम के साथ ताउन बढ़ाने के लिए कोई बराह रास्त बातचीत शुरू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शाम और लबनान की फौज वादी बका में स्मगलिंग रोकने के लिए तैनात हैं, लेकिन इस इलाके में मजीद बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि शाम के साथ शुमाली सरहदों पर कंट्रोल ज्यादा बेहतर है। वाज़ेह है कि लबनान में कई गैर कानूनी सरहदें हैं जहां हुकूमत स्मगलिंग रोकने और वहां के ताजरों को तहफ्फुज फराहम करने की कोशिश कर रही है। विशाखापट्टनम टेस्ट में जहां रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के जलवे दिखाए, वहीं हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने भी कमाल किया। रोहित ने टेस्ट ओपनर के तौर पर अपने पहले ही टेस्ट की दोनों बारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरियां बनाई, तो वहीं हिंदुस्तानी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपनी फिरकी का जादू बिखेरा। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में एक और नया रिकॉर्ड बनाया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अश्विन ने यह हदफ सिर्फ 66 मैचों में मुकम्मल किया और श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।